All right. So your question number 1, and you have to calculate the cos of 12 degree plus cos of 84 degree plus cos of 150 degree plus cos of 132 degree. You have to simplify this and prove that all this is equal to minus half. So question is prove this. अच्छा Okay, do it. You already know numerous identities and all that. You know quite a lot. See if you can identify uh, with this. Always try to select a pair where there is commonality. For example, if you see 156 and 12, what is the sum? 168. No, कोई commonality नहीं आ रही है. 132 or you can pick any pair in fact. And just for your knowledge, okay, you can continue to do this and I will tell you something. अभी इसको normal तरीके से solve करो आप. Rings a bell in you? कोई hint आता है दिमाग में? सोच रहा हूँ Okay. Okay, so let me introduce you to this. Okay, although you can using different approaches, but still it is important to understand that there is a type of questioning in which they ask you the values of sine of 15 degree. Okay, okay right, which is 30 minus 45 minus. This is easy, right? ये थोड़ा easy हो जाता है comparatively. तो इसमें तो आप you can do easily. You can write it as sine of 45 minus 30. So this becomes quite easy. correct But if you see the sine of 105 also, even this is not too hard because it is sine of, you can write it as 60 plus 45. हाँ लिख सकता हूँ इनके तो पता होते हैं ना. एक कैटेगरी अब आएगी जिसको बोलते हैं साइन ऑफ 18 डिग्रीज. ओके, 18, 36 एंड ऑल दैट. ठीक है इसमें क्या करना है आपको? इट्स लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्रीज, multiply both the sides by 5, so you get 90 degrees. Then split it into two parts. One is 2 theta and the other is 3 theta is equal to 90 degrees. So write 2 theta is equal to 90 minus 3 theta. And when you write, take sine of both the sides. So sine of 2 theta is equal to sine of 3 theta. Solve this. This will become 2 sine theta cos theta, and sin theta आपको expansion याद होगा. Sorry, if you take sine on the both the sides, this will become cos. ठीक है? So ठीक cos है 3 theta का expanded जो expansion है, that is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ठीक है सर Right? So if you take cos theta all across common, so you will get 2 sin theta is equal to 4 cos square theta minus 3. Split this 2 sine theta is equal to 4 into 1 minus sine square theta minus 3. Okay. So this is 2 sine theta is equal to 4 minus 4 sine square theta minus 3. ये बन गया minus 4 sine square theta plus उधर ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है plus 2 sine theta. Quadratic type बन रही है if you see in sine theta, right? Minus 1 is equal to 0. So if I try to solve this, sine theta is equal to minus 2 plus minus 4 minus 4 b square minus 2ac हो गया ना? करेक्ट b square minus
तो अगर आप क्वाड्रेटिक लगाते तो क्या बन जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? तो दिस विल बिकम 16, 32. हम्म 4 into a, so this will become plus 16 divided by 8. ठीक है ना? ये -4 into 1 into 4. ठीक है। तो ये मेरा बन गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 8 हम्म is equal to -2 plus minus 2 root 5 divided by 8. So which means my sine theta, where theta was 18 degrees, I started with that, comes out to be, the value of sine comes out to be -2 by 8 plus root 5 by 8, and sine theta is equal to -2 minus 2 root 5 by 8 is equal to -1 plus root 5 divided by 4, and sine theta is equal to -1 minus root 5 divided by 4. I get two values. हम्म Since I have taken the quadrant number 1, I ignored the this one. Okay, because theta in this equation when we started, if you remember, is an acute angle. यस सर। So why sine will be negative? So ignoring this, so you see that you found the value of sine 18 to be equal to root 5 minus 1 by 4. करेक्ट। If you know sine 18, can you find cos 18? You can. 1 minus sine square 18. हम्म Okay, so you will get an answer. Cos 18 is equal to 1 by 4 under root of 10 plus 2 root 5. So ये वैल्यू अगर आपको sin 18 की याद हो जाए परमानेंटली, अच्छा। you have to memorize this. हम्म Root 5 minus 1 by 4. मैं आपको बोलूँगा sin of 72 निकालो, तो आप बोलोगे sin of 90 minus 18 is equal to cos of 18. सीधा आंसर. हम्म तो 18 के जो मल्टीपल्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, supposingly I tell you to find cos of 36, right? Can you write it as 1 minus 2 sine square 18? हाँ, लिख The सकते हैं। knowledge of cos 2 theta. Sine square की तो वैल्यू आपने याद कर रखी है sine की. हम्म ठीक है। Solve it, get the answer. LCM ले लो, आंसर आ जाएगा. हम्म Cos 36 भी आ गया. If you know cos 36, you can find sine 36 also. करेक्ट। 1 under root of 1 minus cos square. So if you know this, this is instrumental in helping you find 36, 72. मतलब 18 डिग्री के मल्टीपल तक आप जा सकते हो with the help of these identities. एक आपको ये ओके याद सर। रखनी है. Okay. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि there is another series which goes on, which is 7.5 degrees. हम्म If theta is equal to 7.5 degrees, which means theta is equal to 15 by 2, right? यस सर। So 2 theta is equal to 15. We started with this, okay? वही ट्रिक यस सर। अपनाएंगे दोबारा से. And now tan theta, right? Tan of theta कितना होता है equal to, if you have to write it, it is sin theta upon cos theta, right? Or you can also write it as tan theta को 1 minus, ऊपर sin square theta लाना हो, तो you will write it as 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta. ओके। 1 minus cos 2 theta क्या होता है? 2 sin square theta यस सर। divided by 2 sin theta cos theta. हम्म Why am I doing this? क्योंकि मुझे tan 2 theta जो है, ये मतलब मुझे एंगल 7.5 से समझ में नहीं आ रहा, तो आई एम इंक्रीजिंग. जैसे मैंने वो 5 टाइम्स कर दिया था डेरिवेशन में ऊपर. आई स्टार्टेड विथ थीटा यस सर। एंड आई मेड इट 5 थीटा. हम्म Similarly, yeah, I started with theta
देन आई मेड इट 2 थीटा, देन आई रोट दिस। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू डाल लो आप अपना cos 2 थीटा की। तो tan ऑफ 15 डिग्रीज, सॉरी tan ऑफ जो भी आएगा इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 30 लिख लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरा थीटा कितना है, सॉरी दिस विल बिकम cos ऑफ व्हाट, 2 थीटा है ना ये। हम्म तो 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डाल रखा है मैंने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ ये 2 थीटा का मतलब 15 ही हुआ ना, cos 15, करेक्ट। cos 15 ओके ठीक है। सो लेट्स आई पुट cos ऑफ 15 डिवाइडेड बाय sin ऑफ 15। हम्म So this is 1 minus cos of 45 minus 30 whole divided by sin of 45 minus 30 is equal to 1 minus cos 45 cos 30 plus sin 45 sin 30। sin मतलब 7.5 से 15 तक पहुंचे तो फिर काम आसान हो जाता है। हाँ, यस सर। Okay, so this is sine of 45 cos 30 minus cos of 45 sine of 30. If you put all the values you will put in this, the answer हम्म you will get for this is, after rationalization and everything, is tan 7.5 is root 3 minus root 2 हम्म into root 2 minus 1। अच्छा। ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। So if you have to समझ गया। find the, so if they say what is the tan of 15 degrees, tan of, sorry, 7.5, हम्म आंसर। समझ गया। तो ये ना स्टैंडर्ड है, मतलब कुछ ऐसे टिपिकल एंगल्स हैं जो दिखते नहीं है लेकिन फिर भी आ जाते हैं। हम्म दिखते नहीं है सीधे सीधे कि यू आर एबल टू सी देम डायरेक्टली, नहीं नजर आएगा। ओके, लेट्स से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 22.5 degrees. Okay, so I tell you, calculate the value of theta is given to be 22.5 degrees. Find cos of 22.5 डिग्री। तो आपने बोला क्या है इसमें, इसको डबल कर लेते हैं पहले। cos 2 थीटा इज गिवन बाय, अगर cos निकालना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम्म So cos of 45 degree is going to be, this will be cos of 45 is करेक्ट। equal to 2 cos square 22.5 minus 1। उधर ले हम्म जाओ तो 2 cos square 22.5 is equal to cos of 45 plus 1। So cos square 22.5 is equal to 1 plus 1 by root 2 divided by 2. So take the square root and you get the cos of 22.5. अंडरस्टूड। If you find the cos of 22.5, you can easily find the sine of 22.5. हाँ, If you ठीक है। divide them, you will get tan of 22.5. हम्म So some values you have to memorize, especially ओके the सर। the multiple of sine of 18, especially is important. ये वाला हम्म जो हमने, इतना लंबा प्रोसेस था दिस। सबकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर सारे याद हो जाते हैं, 3-4 ही होते हैं, इफ यू मेमोराइज देम यू विल गेट इट। ओके सर। ओके, आई जस्ट शेयर अ पिक्चर विद यू सो दैट यू कैन कीप इट हैंडी, कभी भी देखना हो। okay? ठीक और है। टाइम बचता है बहुत। हाँ याद होता है। रखना, जब भी मैंने जैसे आपको ऊपर क्वेश्चन दिया था जहाँ पे जस्ट इट्स बॉगलिंग राइट, व्हाट डू यू डू। ऑब्वियसली आपको मालूम है cos ऑफ a प्लस बी लगाना है, एक पेयर ये ले लो एक पेयर ले लो, लेकिन वो एंगल तो वैसे नहीं ना 45 वाले हम्म 60 वाले, बड़े अजीब से एंगल है। यस सर। और जब आप इसे करने लगोगे अभी तो यू विल रियलाइज कि वो जो अजीब चीज़ है वो
Suddenly, because you know something about 77.5 degrees, 2.5 degree, and all that, suddenly that thing will become easy. Hmm. Look at the diagram. It's very useful for you. कभी एमएल खन्ना अगर देखोगे और वो जो बुक आ जाएगी आपके पास, Hmm. सो यू विल सी मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस. ये लो, टेलीग्राम में चेक कर लो. आया? हाँ आ गया. ओके, उसे रोटेट कर सकते हो अगर नहीं है तो. Hmm. दिख रहा है मस्त कितना बढ़िया है. इट्स क्वाइट नाइस ना. लंबा चार्ट है. ये तो नहीं, ये तो कोई और फोटो थी. कुछ और यार, मेरे ना इस फोन से जा नहीं रहा कुछ. कैन आई सेंड इट ऑन व्हाट्सएप? ये सब व्हाट्सएप पे भेज दीजिए. हाँ, वो सही रहेगा क्योंकि जा ही नहीं रहा. Hmm. इसमें टेलीग्राम इज नॉट कनेक्टिंग टू द फाइल्स, नहीं ये भेजने दे रहा. लोकल वाले फोन्स में नहीं चलता. क्या हो गया होगा? ये मतलब इनका एंड्रॉइड बहुत पुराना होता है ना ये फोन्स का. अच्छा, मेरा है. आईटेल वाले का तो. नहीं नहीं, आईटेल वाला भेज रहा है. अच्छा. ओ. रेडमी उल्टा. वाला जो है वो तंग कर रहा है बहुत. रेडमी के तो बहुत घटिया फोन होते हैं. मैं कभी नहीं लेता, मेरे हम्म. बेटे ने ले लिया. आई बाई सैमसंग, दैट्स ऑल. सैमसंग या मोटो ही सही है. हाँ, मोटो बीच में क्योंकि वो हो गया था इनका हम्म. इंडिया से तामझाम. ये सब. देयर टू वाइंड अप ना. दे हाँ. लेफ्ट. लेफ्ट नहीं करा था बस. मतलब ये था कि बंद सही कर दिया था. लो. आपने भेज दिया क्या? यप. हैव अ लुक. वेरी यूजफुल चार्ट. आया नहीं मेरे पास. आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. अच्छा. वो मैंने अभी उससे भेजा ना. वो जो एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड वेब से नहीं भेजा. अच्छा. थोड़ा सा टिंग आवाज आएगी अभी. आ गया अब. अम, हाँ अब आ मेरे गया. आ ठीक है. गया ना. सो यू कैन सी राइट हाँ. द चार्ट. ये सब. वैल्यूज देखो ऊपर. 7.5, 15, 18, 22.5, 36, 67.5 और फिर 75. हम्म. है ना? ये सब. ना, लेट्स गो बैक टू अवर क्वेश्चन विच इज दिस. और हम इसकी राइट साइड पे करते हैं इसको ट्राई. अब जो आपको cos a प्लस cos b के बारे में पता ही है. पिकअप any two and start working on them and then you can refer to the chart you have. हो सकता है वो एंगल आपके आ ही जाए इसको सॉल्व करते करते. अच्छा. ठीक है. कोई भी उठा लो जो भी आपको पसंद आ रहा है. देखो किसी से 18 डिग्री 36 डिग्री लाने की संभावना है. इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू व्हाट हैपेंस? 72. हम्म. तो क्लोज है ना 36 के. ये सब. सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय 2 ही तो करते हैं cos a प्लस cos b में. हम्म. तो एक बार इन दोनों को ले लो और एक बार इन दोनों को ले लो. ठीक है. आई होप इट इज गिविंग यू सम हिंट. हम्म. थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ये टिपिकल एंगल होते हैं तो ऐसे अजीब मतलब स्ट्रेंज लुकिंग कॉस एंड इनको सॉल्व करने के लिए यू हैव हेल्प अवेलेबल in the form of these typical angles. ये सब. Help is also available. Not that you're helpless. वो चार्ट अगर आपको एक्सपोजर है तो यू कैन सॉल्व देम इन वन लाइन. ठीक है.
सो जो 30-45 होते हैं उनको स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं. हम्म. These are special ones. That's the only difference. ठीक है. Oh, so you're doing it नीचे? Okay. हाँ, तो वो भर गया था. ठीक है, बढ़िया. बेटर है. अच्छा, you picked up only that. Okay. Divided by 2 नहीं होता नीचे. अच्छा, you're changing it further. Oh, okay, you simplified it. हम्म. Not bad यार. ये मेरे को better थोड़ा सा method. ये सिंपल मेथड लगता है ये वाला. ये बढ़िया है. हाँ. दिस इज नाइस. ये सेकंड क्वाड्रेंट है. अच्छा, नेगेटिव कर दिया. बहुत अच्छा है. बहुत ठीक. बढ़िया. काफी छोटा हो गया इससे. यस सर. बड़े बड़े एंगल थे इतने गंदे गंदे. ओके, नॉट वही बैड. क्योंकि आपके वाले थोड़ा मेथड मुझे अभी बैठा नहीं है दिमाग में. ओके. वो भी बिठा लूंगा फिर. इन दोनों को साथ कर लेता 12 वाले टर्म. ये 3 हो गए. पिकअप पेयर वाइज ना. एक पेयर दूसरा पेयर. छोटे छोटों को साथ में कर लूंगा.
मेरे ख्याल से एक छोटा, पहले दो वाले सही हैं और फिर दूसरे दो वाले सही हैं। अच्छा। बट यू आई लीव इट टू योर जजमेंट। मैं तो मतलब आई एम गिविंग माई 2 cents, हम्म। बट आई लीव इट टू योर जजमेंट। डू इट। ठीक है, कैसे भी कर लेता हूँ। हाँ, मेक्स नो डिफरेंस। हाँ।
Something good came out of this? अभी हो रहा है। Okay. Let me say, where are you? Where are you on this? ठीक है. Now you know sine 36 from that chart, right? अभी हमने derive करा था. एक टर्म गलत आई है तो उसके लिए मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगी। क्यों? एक मिनट. 84 प्लस 12 और 84 माइनस 12 ये 72. 896 सही है. 2 साइन 48 प्लस 72 सही कराया. नहीं, एक साइन 2 डिग्री आ रहा था, उसको मेरे को इंटरचेंज कहाँ पे करना है? पड़ा। लास्ट वाला। ये 12 क्यों करा है? 2 है ना नीचे. ओ अच्छा, ओ अच्छा, सॉरी सॉरी। इसको काट दो ना, डिलीट कर दो हम्म, इसे. आ गया. ठीक। मैं वही सोच रही क्या आ रहा है। 24। Now you can see the chart also. हम्म। Can give you some insight. साइन 48 को कैसे, कौन से एंगल से लोगे? अच्छा, यू कैन टेक इट एज 30 प्लस 18. वही सोच रहा था सर। ओके. 48 वाला तो मेरे ख्याल से होता ही नहीं है. लेकिन 30 का एंगल। अच्छा हाँ, तो ठीक है ठीक टिपिकल है। एंगल है. हाँ ठीक नॉर्मल है ठीक एंगल है. है। हाँ। उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में गिना जाता है. यस सर। अब हो जाएगा। इफ यू हैड सिलेक्टेड द एक्सट्रीम पेयर्स हम्म। 132 एंड 12 तो सब्ट्रैक्ट करते तो 60 डिग्री आ जाता हाँ, वो भी कर सकते। है ना. और उसमें नंबर जो है इवन आ रहे हैं, मतलब इफ यू ऐड द मिडल पेयर ऑल्सो and you do 156 plus 84. This is 84, right? Yeah. हम्म। ये कितना बन जाता? 120 डिग्री. चल। ये मतलब आई एम सेइंग दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ये दो मिडल का पेयर. लेकिन ये इससे भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लेक्स करते हैं। हो गया है. फंस जाओगे करते करते. नॉट दैट इट वोंट कम, इट विल कम. आएगा तो इससे भी थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाएगा ये. हम्म। बीच में ये माइनस साइन. अच्छा, यू पुट द वैल्यू ऑफ साइन 36. अच्छा, नाउ यू आर डूइंग दिस, तो ये एक ही है ना ये. हाँ। ठीक है. नाउ यू आर सॉल्विंग द सेकंड ब्रैकेट. ठीक है. सो साइन 12 इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी पेनफुल. साइन आई थिंक इट्स नॉट अ टिपिकल. 30 - 18 कर लेता हूँ। हम्म. कर सकते हैं. नॉट बैड. हाँ। कर सकते हैं. ठीक है, अलाउड है.
Just give me 1 second. हम्म।
हाँ जी, हो गया। सर बोर्ड चलना बंद हो गया था। व्हाट? हम्म, दैट्स वियर्ड मैन। सी इफ इट इज अब आया। वर्किंग नाउ। हाँ अब आया। ये तो कोई और बोर्ड आ गया। ओके, कोई और आ गया। हम तो ट्रिको प्रैक्टिस में थे। ये नया बोर्ड आ गया ये वाला। ये नया बोर्ड है। हम्म, ये भी कोई और बोर्ड है। वो बोर्ड कहाँ गया फिर? दैट वाज द लास्ट बोर्ड, यही था यार लास्ट तो। ये तो न्यू बोर्ड ही दिखा रहा है, इसमें कुछ डेटा ही नहीं। सारा डेटा चला गया तो। हम्म, ठीक है। लेट्स डू अनदर वन, ओके? ओके। समथिंग सिंपलर। आई होप वो समझ में आ गया कि पेयर सही चुनते तो हम्म। it would have been bit easier, right? थोड़ा सा करेक्ट। easy हो जाता, right? Okay, so let's do this. Okay, so let's calculate cos of 36 into cos of 72 cos of 108 cos of 144. So to calculate the values and prove that this is equal to this. तो आपने लिख दिया? Yes, मुझे क्यों ये नहीं रहा, दिख रहा? ये रहा। मैं आपके कर्सर पे ही हूँ पर मेरे लिए खाली है बिल्कुल। यही हो ना सर, मैं जहाँ पर आपका पॉइंट दिख रहा है। I'm here. इधर ना सर, ये वाला पॉइंट। ये रहा। मुझे दिख क्यों नहीं रहा कुछ? दिख ही नहीं रहा। नहीं। I'm sending you a request to follow me. मैं आपके पॉइंट पे ही हूँ। You are at my point. ए, दिख रहा है अब? बोर्ड बंद हो गया। Cos, हाँ अब दिख रहा है। वो मुझे लगता है जूम कर रहा है पंगे कुछ। हम्म। So cos of 36 multiply by cos of 72 multiply by cos of 108 cos of 108 into cos of 144 is equal to 1/16। अब नीट है, अब तो दिख रहा है। अब तो क्रिस्टल क्लियर। ठीक है।
आ गया सर आंसर। आ गया? हम्म। ओके, ऑलराइट। सो इसके अंदर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो, और सम ऑफ द रिजल्ट्स विच गेट वेरी यूज्ड, मतलब काफ़ी यूज हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। सम खासकर ट्रिपल जब होता है ना, एंगल 3 गुना, तब हम्म। काफ़ी यूज होते हैं। सो द रिजल्ट्स आर, एंड देयर शॉर्टकट्स एक्चुअली। सो इफ यू हैव cos of a into cos of 60 minus a, right, into cos of 60 plus a is written like 1 by 4 cos of 3a, ठीक है। एंड साइन ऑफ a into sine of 60 minus a into sine of 60 plus a is equal to 1 by 4 sine of 3a। ये आपको रिजल्ट मेमोराइज करने हैं, हम्म। शॉर्टकट है ट्रिपलिंग का। तो अगर आपको कभी भी नजर आए, जैसे मैं आपको देता हूँ कॉस ऑफ, यहाँ लिख लो 20, हम्म। तो कॉस ऑफ 40 हो जाएगा अगला, और अगला क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 80, करेक्ट। है ना। तो ऐसे आपको अगर नजर आता है लिखा हुआ कॉस 20, 40, 80, और कंफ्यूज करने के लिए मैं कॉस 60 भी दे देता हूँ, इसको तो छेड़ना मत। बट यू कैन राइट डायरेक्टली अबाउट दिस, व्हाट इज ए इन दिस, इफ यू रिमेंबर 30 डिग्री आएगा ना ए। यस So I सर। can straight away write this as cos of, got it? So यस सर। you will see certain typical values where this triplet gets हम्म। sine of 10, sine of 30, sine of 50 and sine of 70. Solve this. Obviously इसको कुछ नहीं करना, ये जो है सीक्वेंस में देखो इसमें फिट होता है। ए निकालने अगर हम 10 ले लें तो 10 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये हम्म। 70 हो जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू 10, ये सेकेंड रिजल्ट ही है ना, करेक्ट। साइन वाला। लगाओ इसको, देखो, फाइंड द वैल्यू यूजिंग अ रिजल्ट। कहीं तो फिट हो रहा होगा।
कैसा? कहीं तो फिट हो रहा होगा। वही सोच रहा हूँ क्यों? एट कि फन एज 10 डिग्रीज ना। हाँ, 8 10 डिग्री है। फिर ऊपर डालना शुरू कर दो उस आइडेंटिटी में जो मैंने लिखी है। हम्म। बनाते जाओ उसको। ये लिखी तो आइडेंटिटी ऊपर साइन ए। हाँ, देखिए। ए की वैल्यू 10 डाल दो। देखो सेम ही बन जाएगी। और राइट साइड पे 3 टाइम्स होके आता है आंसर, 1/4 होके, ये वाला। हम्म। तो 1/4 साइन 30 हो जाएगा ना सीधा। यस सर। वन लाइनर था क्या? क्या? 9 10 1/8 होगा। जो साइन 3a कर लिया हमने। साइन ऑफ लॉग भी हो गया हमारा। ऑलराइट, नाउ वी विल डू जिसके अंदर एंगल जो होते हैं ना सारे के सारे अंदर। हम्म। Okay, so there will be a relationship between the angles. So for example, angles are in, I will just copy it, the result, okay? And you have to memorize it again. Okay, so yes, you will see the, एक तो ना ये इसने मेरे को बड़ा तंग करा हुआ है यार ये, जो स्निपिंग टूल है ना, हम्म। इतना घटिया है। क्यों? अरे वो पकड़ में नहीं आएगा, मतलब वो डू जो मर्जी कर लो वो स्लाइड। एक मेरे कीपैड पे ना वो नहीं है, विंडोज का साइन जो होता है ना, जो अरे, ये तो गड़बड़ है। पता नहीं कैसा अजीब सा लिया है यार। मेरे ख्याल से मैंने ना वो लिया था मैक के लिए, क्या चीज? अपना ये। कीबोर्ड? हाँ, अच्छा, आपका लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं है? वो अलग है ना, वो दूर रखा हुआ है। अच्छा। ये दिस इज, अगर आपका मैक का होता तो उसमें कंट्रोल की जगह कमांड कीज होती। हाँ नहीं कंट्रोल ही आ रही है, ठीक है। फिर तो बट विंडोज इसमें का ही है। स्ट्रेंजली वो इट इज नॉट देयर। वो आफ्टर बाहर वाले जो होते हैं वो गड़बड़ी होते हैं। ओके, आई एम शेयरिंग द रिजल्ट विद यू। ठीक। Okay, and you can see the level of the result. So the angles are in arithmetic progression. ये देखो, the angles, look at the angles which are साइन में क्या ऐड हो रहा है, और कॉस देखो, साइन अल्फा से स्टार्ट हो रहा हम्म। है एंड सी कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म्स, राइट? सो द लास्ट करेक्ट। एंगल इज साइन ऑफ अल्फा प्लस एन बीटा। हम्म। और नीचे वाले में देखो कॉस, देखा? सो एंगल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस सर। एक के बाद एक एंगल आ रहे हैं ना ये। तो ये देखो हम्म। रिजल्ट, देखो फाइनल सबका ऐड करने का। हम्म। If you know, you can solve it in one step. If you don't know, so you will see some of the questions which come up which are bit harder, और n की वैल्यू अगर आप ले लो तो जैसे आपको अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, cos ऑफ 2π/7 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी प्लस, ओके, cos ऑफ
ये एंगल ऐड ही तो हो रहे हैं ना सारे, सो हम्म। हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 4 पाई बाय 7 प्लस कॉस ऑफ 6 पाई बाय 7. If you see this and try to use this property, you will find that ये सारे के सारे एंगल जो आ रहे हैं ये वाले, इनमें जो ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा वो 2 पाई बाय 7 है, मतलब जो बीटा की वैल्यू है ये वाली, तो ये कॉस, ये तो कॉस अल्फा ही हो गया सिर्फ, ये यस वाला. सर। राइट, मैं ऊपर से ही देख के इसको आई एम जस्ट यूजिंग इट एज दिस. राइट, ये दिख रहा है ये वाला कॉस अल्फा फिर बीटा, तो बीटा मेरा मैं वही ले रहा हूँ 2 पाई बाय 7. सो कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, तीन ही हो गए ना सिर्फ. हम्म। और इस साइड मुझे लिखना है फिर इट शुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ एन. तो मेरी वैल्यूज, मेरा एन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है टू एन टर्म्स, तो दिस इज थर्ड थर्ड टर्म, राइट. करेक्ट। सो आई विल राइट कॉस ऑफ, डायरेक्ट लिख दूँ 3 यहाँ पे, ठीक है। 3 + 3 - 1, 2/2, हम्म। 3 - 1/2 बीटा. बीटा तो मेरा 2 पाई बाय 7 ही है. यस सर। 2 पाई बाय 7, ये क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ एन 3, और बीटा क्या है? 2 पाई बाय 7/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा. साइन ऑफ बीटा का क्या मतलब है? 2 पाई बाय 7 इंटू बीटा/2, मतलब उसका आधा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये तो सारे वे 2 पाई बाय 7 यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये इसमें अल्फा मैंने ये ले लिया, और उसमें जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो 2 पाई बाय 7 कर रहा हूँ. हम्म। तो पहली बार ये बन गया 4 पाई बाय 7 ऐड करने पे, और जब मैंने ये करा 2 पाई बाय 7 प्लस 2 बीटा, तो ये बन गया 6 पाई बाय 7. तो सीक्वेंस ही बनती जा रही है जो सॉल्व कर ली हमने. तो ये कितना आ जाएगा आंसर? ये 2 कट जाएगा, हम्म। ये बन जाएगा कॉस ऑफ 3, और कितना आ जाएगा प्लस 2/7. बीटा लिखा है ना, ये बीटा, ठीक है. टू 2/7 पाई, ठीक है. ठीक है। और ये बन गया साइन ऑफ, मतलब सिर्फ कॉपी करने में भी मुश्किल हो रही है. 2 ये कट गया, तो दिस इज 6 पाई बाय 7. हाँ। This 2 also goes away, so this is sine pi/7. So this is, ये 3 क्यों आ रहा है? सिर्फ 3 लिख, n आ रहा है सिर्फ, ये n उसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है. बीटा, ये बीटा जो है, इज इट गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, और इट इज ओनली विद n-1? लग तो रहा है n-1 के साथ ही है. हम्म। नहीं, n-1 के साथ लगा। कॉस का रूल, कॉस का रूल हम कर रहे हैं, कोसाइन वाले कर रहे हैं ना. करेक्ट। ओके, तो सिर्फ फॉर्मूला मतलब अंदर फिट करा है, और तो कुछ नहीं करा. फर्स्ट टर्म कॉस ऑफ साइन n π/2, ये कितना बन जाएगा? 23 पाई/7, और ये बन जाएगा साइन 6, और ये बन जाएगा पाई 23/7. ओके, 21 cos of π/7 plus 3 π/7. What is π/7? अच्छा जी, cos of, अच्छा इन्होंने जो रूल थोड़ा सा
जो है इसी रूल को जो मैंने लिखा है, दे हैव सिंप्लीफाइड इट। इफ इट इज कॉस अल्फा, जो ये वाला रूल है ना, ये मैं लगा रहा था जो ऊपर हम्म। कोसाइन का, ये लगा रहा था ना मैं, करेक्ट। ये वाला। ओके, इसकी एक और फॉर्म दी हुई है, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, अगर एन टर्म्स तक है, राइट, विच इज द एंगल्स आर इन एपी, और एन टर्म्स हैं कुल मिला के, तो इसका आंसर आएगा ये साइन ऑफ एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2। तो ये भी तो हमने यहाँ पे भी तो ये लिया था, ये रहा ना, साइन ऑफ एन बीटा बाय 2, जी करेक्ट। वाला। हाँ, लिया हमने, तो क्या फ़र्क है। और अंदर थोड़ा सा इसने थोड़ा बेटर फॉर्म लिखी है जो समझ आ रही है। वो फॉर्म है कि यू राइट इट एज, ये दोनों लिखने के बाद साइन, ओहो अच्छा, दिख गया मुझे गलती। दिस वैल्यू विच वी आर रीडिंग एज एन इज अल्फा। हम्म। ये ये एन नहीं है, ये जो एन लिख दिया ना, एन 3, 3 टर्म्स देख के, दिस इज अल्फा। ये गलती हो गई बड़ी तगड़ी। सो ये 2 पाई बाय 3 था, 2 पाई बाय 7। क्वेश्चन में तो अल्फा ये है ना, यस सर। कॉस अल्फा, ये गलती है बस, बाकी तो ये कॉस 2 पाई बाय 7 और ठीक है, ये अल्फा प्लस एन माइनस 1, तो 2 पाई बाय 7 प्लस इसके साथ ये ऐड हो जाता। इवन इफ आई ट्राई टू करेक्ट इट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा छोटा था तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सी। सो दिस इज कॉस पाई, सो दिस इज कॉस ऑफ 2 पाई बाय 7, ये 2 कट गया तो ये बच गया 2 बाय 7 पाई। करेक्ट। साइन ऑफ, ये तो हमने निकाल ही लिया है, ये आ रहा था 2 कट गया, साइन ऑफ 3 पाई बाय 7, हम्म। और नीचे आ रहा है साइन ऑफ पाई बाय 7। दिस इज 3 - 1, ये n - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा, बीटा सॉरी। तो अल्फा ये है हमारा, बीटा 2 पाई बाय 7 है, 2 कट गया, 2 बाय 7 पाई, तो हमारा बचा कॉस ऑफ 4 पाई बाय 7 साइन ऑफ 3 पाई बाय 7 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 7, राइट। हम्म। इन दोनों को अगर लें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 4 पाई बाय 7 प्लस 3 पाई बाय 7 प्लस साइन ऑफ 4, ये 2 कॉस साइन भी है ना, मतलब मैं इसको कह रहा हूँ 2 साइन ए कॉस बी। तो मेरा जो रहेगा ये बेसिकली मेरा ए ये है, तो एक ए प्लस बी कर रहा हूँ मैं, हम्म। और दूसरा मैं ए माइनस बी कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो 3 पाई बाय 7 माइनस कॉस ऑफ, अंदर ही लिखना है मेरे को तो, सॉरी, टू राइट इट इंटरनली, राइट, ये वो जो है हम्म। -4 पाई बाय 7, ए इज दिस, करेक्ट। एंड डिवाइडेड बाय 2 sin पाई बाय 7। तो ऊपर बन गया मेरा पूरा साइन पाई, 4 + 3, 7 पाई डिवाइडेड बाय 7 हम्म। प्लस साइन ऑफ -पाई बाय 7। कितना आ गया ये, साइन ऑफ पाई, ये तो -1 होता है, हम्म। और ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन यार ये बीच में ना
मल्टीपल होता ना अगर ये तो कट जाता करेक्ट। यहाँ पे, ये अगर ये दोनों कट जाते ना, ये और ये, -5/7। तो फॉर्मूला सही लगाया यार मेरे ख्याल से यार, कॉस ऑफ, इवने सही करा है सॉल्व। 2 साइन, सही करा है यार। देखो साइन पाई माइनस sin π/7 डिवाइडेड बाय 2 sin π/7, यही बना। हम्म। आगे कैसे होगा ये? ठीक है मेरे ख्याल से, जस्ट चेक व्हाट डज इट कम आउट टू बी। इफ वी डू जस्ट थ्री, फर्स्ट थ्री ऑफ cos 2/7, cos 4π/7 प्लस ये, इनको ऐड करा है यूजिंग द AP रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम्म। देखना जरा क्या आंसर आता है इनका, जस्ट चेक। किसी ने भी हो सकता है कर रखा हो यार, हमारा तो ये देखो कटर एक ही कटेगा सिर्फ, ये बन गया sin π। sin π/7 की वैल्यू तो पता नहीं है, वे टू हार्ड। यू सी एनी एरर? मुझे तो नहीं दिख रहा है, एरर नहीं दिख रहा कोई। है ना? हम्म। sin 2π/7 प्लस क्या है, cos ऑफ 4x/7 अगेन बाय 7। रूल तो बिल्कुल ठीक लगाया है मेरे ख्याल से यार, सिर्फ फिटिंग ही तो करी और करा क्या, अगर AP में है तो ये रूल होता है। आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग। यार ये नाम कौन डालेगा बताओ? ठीक करा यार हमने, कोई गलती नहीं है। ठीक है। ओके, कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती अपनी गलती निकाल लें, चाहे हो ना हो। ऑल राइट, so what you need to do is now find the value of, okay, say you have to find the value of cos of π/11 plus cos of 3π/11 plus cos of 5π/11 plus cos of 7π/11 plus cos of 9π/11, ये करा। मेरे ख्याल से फॉर्मूला ठीक है हमारा, ये α+n-1, इसी को यूज़ करते हैं, देखते हैं इससे आता है। अगर हम इसको, ये तो दिख गया हमें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस 2π/7 है दोबारा, हम्म। ठीक है। व्हेन द एंगल्स आर इन AP, दैट इज द सिचुएशन, है ना? करेक्ट। सम ऑफ साइंस ऑफ एंगल्स व्हेन एंगल्स आर इन AP। करा तो ठीक है यार। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और तो कुछ भी नहीं करा।
सही करा बिल्कुल. इट्स अ थ्योरम एक्चुअली. हम्म, बुक में भी मिसप्रिंटिंग हो जाए तो आपको लगेगा कि आपका गलत है. आई थिंक इसमें सिर्फ आपको यू जस्ट नीड टू जस्ट. ये दिख रहा है फॉर्मूला मैंने दोबारा अपलोड करा है. जस्ट इन केस यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, यू कैन लुक एट दिस आल्सो. ठीक ये है। फाइल है ना ये वाली. हम्म, सेम फॉर्मूला आई हैव कॉपीड इट, दैट्स ऑल आई हैव डन. साइन एंड कोसाइन का. So you can keep it in your just to copy. ये देखो सारे कॉस ऐड हो रहे हैं. तो साइन एन डी बाई टू और साइन डी बाई टू और आगे कॉस ऑफ एल्फा है देखो. हम्म, फर्स्ट टर्म मतलब. और एन माइनस वन डी बाई टू. तो यू ऑल्सो डू दिस. आपके टर्म्स कितनी है काउंट कर लो ना. 1 2 3. पहले तो इसको देख के वैल्यूज देखो. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. एन इज इक्वल टू क्या आ गया? 5. 5 टर्म्स. यस सर। कॉमन डिफरेंस है ये डी. वो आ गया 3 पाई बाय 11 माइनस पाई बाय 11. कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय 11. हम्म, कॉमन डिफरेंस इन द एंगल. सब 2 पाई बाय 11 से सेपरेटेड है. फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? यही चाहिए ना देखो फॉर्मूले में. ए डी नंबर ऑफ टर्म्स. हम्म, मैं यही डाल रहा हूँ. फिर इसके अंदर एक कॉस ऐड हो रहे हैं सारे, तो आई विल यूज दिस. तो साइन ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 4 5. कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 पाई बाय 11. नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डी. कॉमन डिफरेंस हम्म, ऑफ एंगल्स. कितना आ गया ये? साइन 10 पाई बाय 11 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 11 कॉस ऑफ 2 पाई बाय 11. 2 2 कट गया. हम्म, प्लस 5 पाई बाय 11. तो ये दोनों देखो क्या है, ये वाले ये दोनों कट गए. ये पाई करेक्ट। माइनस है, पाई माइनस थीटा. तो ये कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ सॉल्व होके ये आ गया ब्रीफ में. हम्म, सच अ लॉन्ग वैल्यू. आई होप क्वेश्चन सही है यार. फिर से ये भी इसकी वैल्यू निकालनी है. तो डाल तो दिया हमने वैल्यू. कॉस पाई बाय 11 में 5 थी, 9 तक थी. आई होप ये सही है. कट गया. ये आ गया कॉस ऑफ ए द फर्स्ट वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू कितनी थी देखना जरा. ओ सॉरी, फर्स्ट वैल्यू इज पाई बाय 11. एंड देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, n-1. वो भी कर लिया. हम्म, n-1 कितना हो गया? सॉरी 4 हो गया. 5 - 1 इज 4. यस सर। सो पाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 2.
वो 2 भी आ गया 2 पाई और डी कॉमन डिफरेंस निकाल लिया था हमने, डी हम्म। ये भी डाल लिया, ये n-1 डाल लिया। मैं तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ बस। तो ये कितना आ गया 5 पाई बाय 11। ठीक है। मतलब आपको पॉइंट इज नॉट दैट, मतलब हो सकता है अभी if you see the question and you can identify that this is an AP arithmetic progression, you can solve it. If you don't see it, then you can't. So trigonometry is not hard because of the questions, but by the number of variety you have to see. हम्म। बहुत है, excessive ठीक है। variety is available. We were doing concept question. Once we get your book, what we will do, we will only do that book and finish it off. Kadam. हम्म। So we will restrict unlimited at Trigo. We can take a few months to complete. So हाँ ठीक है, हमारा ऊपर क्या क्या आ गया था? एक आ गया था cos ऑफ 10 पाई बाय 11 अच्छा। और एक आ गया था cos, तो cos 5 पाई बाय 11 आ गया, तो हमने वो काट दिया। एक आ रहा है हमारा sin पाई बाय 11, नीचे आ रहा है हमारा, आ रहा है, और ऊपर आ रहा है sin 10 पाई बाय 11 आ रहा है, आ रहा है, sin 5 पाई बाय 11 आ रहा है। तो आप अगर देखो अच्छा, ठीक है यार, cos 5 पाई बाय 11, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये साइन ही है ना दोनों? हाँ ये साइन है, ठीक है, ये साइन लिया, ये साइन है ना, देखो साइन एन डी बाई टू, सो वी हैव टेकन एन कॉमन डिफरेंस डी, ओहो वी हैव फॉरगॉटन टू डिवाइड इट बाय 2। हम्म। ये भी साइन कॉमन डिफरेंस हैज टू बी, इसको डिवाइड करा देखो, 2 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2, ये तो ठीक लिखा, लेकिन ऊपर क्या हो गया, साइन 2 कटने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा 5 पाई। गॉट इट? यस सर। एक और गलती, सिर्फ कैलकुलेशन एरर ही हो रही है और तो कुछ दिख नहीं रहा। हम्म। इनटू ये हो जाएगा साइन ऑफ 5 पाई बाय 11। ओके, सो दे विल, दिस विल नॉट कट राइट, ये जो डिनोमिनेटर में था ये तो रहेगा फिर। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 5 बाय 11। नाउ द हिंट इज, ये आ रहा है कॉस ए साइन ए, है ना? सो दिस विल बिकम साइन ऑफ 10 2a। समझ गए? यस सर। ये तो पाई माइनस पाई बाय 11 है ना, हम्म। ये तो कट गया इससे, ये भी तो वही है, साइन करेक्ट। ऑफ पाई माइनस थीटा, तो ये कट गए। तो एक गलती देखो, ये यहाँ पे हो गई एक गलती, ये डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिया, या एन की गलती, तो इसके अंदर फॉर्मूला फिटिंग में अगर फॉर्मूला मतलब ठीक से कॉपी कर लो, उसके बाद इट रिड्यूसेस टू सम फॉर्मेट विच इज अ नोन फॉर्मेट, डिनोमिनेटर से कट गया, वो देखो साइन 2 थीटा बना लिया और कट गया। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द साइन एंड कोसाइंस ऑफ एंगल्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम्म। ठीक है, अच्छा, टुमारो टुमारो आई मे नॉट हैव अ क्लास, क्योंकि वन पर्सन हैज अ केमिस्ट्री एग्जाम ऑन 4th, तो आई विल, अच्छा। और बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो स्कूल के साथ वी आर नॉट एबल टू कोप अप, हम्म। so we are behind, lagging behind, so I have to complete the complete
बॉन्डिंग चैप्टर जो है ना वो ख़त्म करना है मुझे। ठीक वहाँ तक पहुँच गए हैं, वेस्पर तक पहुँचे हैं, और ठीक है। एक और हो जाएगा, तो टुमारो लेट्स नॉट हैव अ क्लास, उसी को पढ़ाता रहूँगा सो दैट थोड़ा सा वो स्कूल के लिए तैयार हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।